भारत ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बदला लिया है और एलओसी पार कर आतंकी कैंपों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की देर रात करीब 3:30 बजे मिराज के 12 फाइटर जेट से हमला किया और मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोट में आतंकी कैंप पर बमबारी कर पूरी तरह तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई पर विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ पर फिदायीन हमला किया था। ये संगठन पाकिस्तान में 2 दशक से सक्रिय है। पाकिस्तान को उनके कैंप के बारे में लगातार जानकारी दी जाती रही है, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें सूचना मिली कि वो देश में और फिदायीन हमला कर सकते हैं। इसके बाद भारत ने बालाकोट में जैश के कैंप पर कार्रवाई की, जिसमें जैश के आतंकी और ट्रेनर ढेर हुए हैं। जैश कमांडर यूसुफ अजहर भी मारा गया है। तो 3:30 बजे कार्रवाई हुई और नेस्तो नाबूद आतंकी कैंपों को किया गया है, जिसमें 200 से 300 आतंकी बताए जा रहे हैं मारे गए हैं। 12 मिराज विमान थे जिन्होंने उड़ान भरी और इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब हर कोई गर्व महसूस कर रहा है एयरफोर्स पर। एयरफोर्स के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कहा यह जा रहा है 15 तारीख को ही प्लान कर लिया गया था। सब कुछ 15 तारीख को ही ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि कैसे यहां पर बदला जो है लिया जा सकता है। In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidayin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidayin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you.
तो जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान को उसी की भाषा में। अब तक भारत नरमी जरूर बढ़ते हुए था, लेकिन जैसा कि पहले से ही प्रधानमंत्री ने इस अटैक के बाद कहा था, जो हुआ 14 तारीख को, उसके बाद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यहां पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और आज जो अटैक हुआ है उसके बाद ये भारी कीमत वाकई में चुकाई है इन लोगों ने। हालांकि कभी भी पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़कर वहां पर दाखिल हो सकता है भारत, लेकिन इस बार कम से कम ये एक्सेप्ट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि हाँ विमान आए थे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है इस झूठ को कह रहा है कि यहां पर उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त राजीव है और हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन RSY चौहान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कैप्टन साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को सबसे ताकतवर मानता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, उनके F-16 विमान जो कि वापस जवाबी कार्रवाई करने आए थे, उनको वापस लौटा दिया गया। निश्चित ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पाकिस्तान को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है जी। और ये समझ देर से आ रही है उनके अंदर, लेकिन ये शुरुआत हो गई है अभी बड़ी कार्रवाई की। और हमारी जो वायुसेना है पूरी तरह से कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और जो हमारे आतंकियों के कैंप थे उन्हें बर्बाद किया गया है। ये समय है कि वो जो POK है, POK वो हमारा हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा। महाराजा हरि सिंह ने पूरी रियासत सौंपी थी भारत को, जो उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है वो हमें वापस मिल जाना चाहिए और आतंक के ये जो अड्डे हैं वो समाप्त कर दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो खामोशी भारत की थी, जो नरमी भारत हमेशा बरतता आया था, इस अटैक के बाद पाकिस्तान की आंखें जरूर खुल जाएगी। हमारे साथ राजीव भी बने हुए हैं लखनऊ से। राजीव, मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है, जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था। वो कहीं ना कहीं वो आंसर एक तरीके से कह सकते हैं इस आतंकवाद को दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारी एयरफोर्स की तरफ से। लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? इस वक्त पूरे लखनऊ में जोश का माहौल है और हमारे साथ कई युवा खड़े हुए हैं जो जगह जगह पे जो है नारे लगा रहे हैं और जगह जगह पे सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं। इस वक्त हाउस द जोश और ये सारी चीजें हमारे साथ जो युवा खड़े हैं, मैं बात करता हूँ, कैसा लग रहा है इस वक्त? मज़ा आ रहा है और वो मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने का काम किया है। इसलिए भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सैनिकों को पुनः बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी इससे बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होगी। इसलिए मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ये जोश है, ये अभी जिस तरीके की बात आ रही कि बालाकोट में भी जो है इंडियन एयरफोर्स के सैनिकों ने जो हमला किया, बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान जो है आज तक जो झूठ बोल रहा था कि आतंकवाद की नर्सरी उसके यहाँ नहीं है, वो भी आज साबित हो गया है। बालाकोट पाकिस्तान के बॉर्डर में 25 किलोमीटर की दूरी पर बालाकोट पड़ता है, वहां पर घुस करके मारा है। और अगर ऐसा ही पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहेगा तो एक दिन पाकिस्तान विश्व के मैप से हट जाएगा। ऐसा पाकिस्तान होने वाला है, तो सुधर जाए, नहीं तो भारत की सेना में इतनी जरूर दम है कि पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। और इसी तरह आतंकवाद बढ़ावा देते रहे तो भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है, खुली छूट हमारी सेना को दे दी है कि जो करना है वो करिए। तो पाकिस्तान की सेना में इतनी जरूर मादा रखती है, भारत रखता है कि पाकिस्तान की सेना एकदम नास्ते नबूद हो जाएगी और विश्व के मैप से पाकिस्तान हट जाएगा अगर ऐसा ही कदम उठाता रहेगा। देखिए लखनऊ में, सिर्फ लखनऊ में नहीं, शायद पूरे देश में इस तरीके का जोश है। कैसा लग रहा है इस वक्त? पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है, नाज है, जो सेना ने अपनी कार्रवाई की है, पिछली अपने कारनामों को दोहराया है। पूरी सेना अपने साथियों का बदला लेना जानती है, कैसे लेना है, कब लेना है, वो उसको पता है। पूरी तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है और पाकिस्तान आतंकवादी देश है, अपने आतंकवादियों को संभाले और आतंकवादियों को खत्म करें, नहीं तो विश्व के नक्शे से उनका नाम हटेगा, निशान हटेगा, आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान भी खत्म होगा।
तो ये आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान भी जो है मिट जाएगा, इस तरीके की भावनाएं लेकर के इस वक्त लखनऊ में नहीं हर जगह जगह से ऐसे नारे और इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। सभी लोग पूरे जोश में हैं। शिल्पा, बिल्कुल राजीव, जो आवाज काफी थर्रा रही थी बोलते हुए पहले 14 तारीख को, उन आवाजों में अब जोश दिख रहा है इस अटैक के बाद, और ये जोश बरकरार भी रहना चाहिए।